آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ کسی کا نام بدلنے سے اس کی اصلیت نہیں بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بچہ کو گود لے لیتا ہے تو اس بچہ کے لیے سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہی معاملہ تاریخ کا ہے۔ تاریخ کبھی بھی نہیں بدل سکتی ہے، نہ تاریخ اور اتہاس میں کسی کی مرضی اور منشا کا دخل ہوتا ہے۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ کسی عمارت اور کسی شہر کا نام بدل دینے سے تاریخ بدل جائے گی اور یہ حقیقت ختم ہو جائے گی کہ مسلمانوں نے بھارت پر 800 سالوں تک حکومت کی ہے۔ لال قلعہ، تاج محل، قطب مینار اور اس طرح کی سینکڑوں شاندار عمارتوں کو جنہوں نے بنایا ہے، اس کی جگہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے گا اور لوگ اسے مان لیں گے۔ اس گمان میں انہوں نے کئی عمارتوں اور شہروں کا نام بدلنے کے بعد آج ایک اور عمارت کا نام تبدیل کر دیا ہے جو مغلوں کے نام سے منسوب تھا۔ کیا ہے پورا معاملہ اور اب کس چیز کا نام تبدیل کیا ہے یوگی آدتیہ ناتھ نے، اور کیا برٹش امپائر کی طرح مغل بادشاہت بھی غلامی کا زمانہ ہے؟ بتائیں گے آج خبر در خبر میں پوری تفصیل، لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے سدرشن نیوز چینل کے بنداس بول ٹی وی پروگرام پر منگل کے روز پابندی عائد کر دی ہے۔ چوہان نے اس پروگرام کے پرومو میں مسلمانوں پر نوکرشاہی جہاد کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان سول سروسز میں دراندازی کر کے ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سدرشن کے وکیل سے کہا کہ آپ کے موکل ملک کا نقصان کر رہے ہیں، نیز ایک ایسا نظام قائم کیا جانا چاہیے جس سے نفرت پھیلانے والی ڈیبیٹ اور پروگراموں پر روک لگائی جا سکے۔ حکومت نے آج لوک سبھا میں بتایا کہ سرکار کے پاس مہاجر مزدوروں کی موت سے متعلق اعداد و شمار بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں انہیں معاوضہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل پارلیمنٹ میں حکومت سے پوچھا گیا تھا کہ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں اور علاقوں تک پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا دینے والے اور مر جانے والے مہاجر مزدوروں کے لواحقین کو، اہل خانہ کو کیا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ عرب ملک بحرین نے یہ واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن سمجھوتے کا مقصد فلسطینی قوم کے دیرینہ مطالبات اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت سے دستبرداری نہیں ہے۔ بحرین کے وزیر داخلہ میجر جنرل الشیخ راشد بن عبداللہ آل خلیفہ نے سوموار کے روز ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ ملک اور قوم کے ساتھ وسیع تر مفاد میں کیا گیا ہے، تاہم اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بحرین نے فلسطین کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ دلی فسادات میں فیس بک کے کردار کو لے کر اس کی طرف سے دیے گئے جواب سے دہلی اسمبلی کی امن اور ہم آہنگی کمیٹی ناراض ہے۔ کمیٹی نے سوشل میڈیا ویب سائٹ کو تنبیہ جاری کرتے ہوئے کہا اس کے اعلیٰ عہدیدار کو حاضر ہونے کا ایک اور موقع دیا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ فیس بک انڈیا کے اعلیٰ عہدیدار اگر اس بار حاضر نہ ہوئے تو ان پر کارروائی کی جائے گی۔ چند دنوں پہلے کمیٹی نے نوٹس جاری کیا تھا۔ ترکی نے یونانی جزیرہ کیوس پر لوزان معاہدے کے برخلاف یونانی فوج کی تعیناتی کے جواز میں ناؤ ٹیکس کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکی نے اس بات کا اعلان یونان کی جانب سے عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے پر کیا ہے۔ ترکی کا اعلان اور یہ قدم یونان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور اب بات آج کے اصل مدعے کی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھارت کی تاریخ، یہاں کی تہذیب اور ثقافت سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اقدام کرتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، تاریخ کا یہ چیپٹر بالکل مٹا دیا جائے کہ بھارت پر 800 سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ پوری دنیا یہ بات بھول جائے کہ لال قلعہ، تاج محل، قطب مینار اور اس جیسی ہزاروں عمارتوں کے بنانے والے بادشاہ مسلمان تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ اس طرح لکھی جائے کہ پہلے چند موریہ گپتا کا تذکرہ ہو، اس کے بعد راجہ داہر کی حکومت کا ذکر ہو، اس کے بعد پرتھوی راج چوہان کا اور پھر نریندر مودی کی حکومت کا تذکرہ کر دیا جائے۔ بیچ میں سبھی کو حذف کر دیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ بھارت میں کبھی مسلمانوں نے حکومت نہیں کی ہے۔
मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन अल्तमश, रज़िया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी, ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, आलमगीर, बहादुर शाह ज़फ़र और उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत, इन सभी का भारत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये कभी यहाँ के हुक्मरान बने ही नहीं। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सवाल हर हाल में होगा और हर कोई करेगा कि मुसलमानों, मुग़लों और अंग्रेज़ों ने भारत पर राज नहीं किया तो फिर 1000 साल तक यहाँ का राजा और बादशाह कौन था, किसने हुकूमत की। भले ही सरकार ऐसे सवाल करने वालों को देशद्रोही करार दे दे, लेकिन सवाल बरकरार रहेगा। इसी तरह किसी इमारत और शहर का नाम बदलने से तारीख़ नहीं बदलेगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आगरा के करीब एक म्यूज़ियम का नाम तब्दील कर दिया है। म्यूज़ियम अभी तैयार नहीं हुआ है, बल्कि उसका काम चल रहा है। यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने 2016 में अपनी हुकूमत के ज़माने में आगरा के करीब एक म्यूज़ियम की बुनियाद रखी थी। इसका नाम मुग़ल म्यूज़ियम रखा गया। उस म्यूज़ियम की तामीर का मकसद मुग़लों के दौरे हुकूमत और उस ज़माने की तारीख़ की नुमाइश थी। आगरा मुग़लों के ज़माने में पाया तख्त यानी कैपिटल था। लंबे अरसे तक यहाँ से उन्होंने पूरे भारत पर राज किया, इसलिए आगरा में मुग़लों के बहुत सारे आसार हैं। उनके बनाए गए किले हैं, मकानात हैं, इमारतें और दीगर चीज़ें हैं। मुग़ल बादशाहों के मकबरे हैं, पुरकशिश इमारतें हैं और सबसे अहम ये कि दुनिया का 7वां अजूबा और भारत का शान इम्तियाज़ ताज महल भी यहीं आगरा में है। इसी बुनियाद पर हुकूमत ने मनसूबा बनाया कि यहाँ म्यूज़ियम सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। यकीनी तौर पर वो ताज महल बनाने वालों की तारीख़ और उनसे जुड़ी हर शय जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे और इस तरह इस म्यूज़ियम के ज़रिए सरकार की आमदनी होगी, हुकूमत की मईशत बेहतर होगी। इसलिए म्यूज़ियम बनाने का काम शुरू हुआ। ये म्यूज़ियम ताज महल के बिल्कुल करीब और उसके शिमाली गेट के सामने बन रहा है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुग़ल तारीख़ की नुमाइश के लिए ज़ेर तामीर इस मुग़ल म्यूज़ियम का नाम छत्रपति शिवाजी से तब्दील कर दिया है। उनका कहना है कि मुग़ल हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारी हुकूमत कौम परस्ती के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए काम करती रही है, इसलिए आगरा में ताज महल के करीब ज़ेर तामीर मुग़ल म्यूज़ियम नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसका नाम चेंज कर रहे हैं। अब इस म्यूज़ियम का नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। यूपी हुकूमत के तर्जमान ने बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का मौक़िफ़ है कि ग़ुलामी और मातहती की जितनी भी अलामतें हैं हुकूमत उन सब को ख़त्म करके रहेगी। आखिर मुग़ल हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने आगरा के मुग़ल म्यूज़ियम का नाम तब्दील करके छत्रपति शिवाजी महाराज करने का फ़ैसला किया है। ये नाम अवाम में कौम परस्ती और ख़ुद एतमादी के जज्बात को जन्म देगा। बयान के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने हमेशा कौम परस्त नज़रियात को फ़रोग़ दिया है और कोई भी ऐसी चीज़ जो ग़ुलामी या मातहत रहने की अलामत हो उसे ख़त्म किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ 3 सालों से यूपी के वज़ीर आला हैं। इस मुद्दत में उन्होंने अपना सबसे अहम कारनामा यही अंजाम दिया है कि मुग़लों और मुसलमानों के नाम से मंसूब इमारत, जगह और शहर का नाम बदल दिया है। मशहूर रेलवे स्टेशन और जंक्शन मुग़ल सराय का नाम बदलकर उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय रख दिया। अंग्रेज़ों के ज़माने में मुग़ल बादशाहों की याद में स्टेशन का नाम मुग़ल सराय रखा गया था। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद को मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने आबाद किया था और 16वीं सदी में इस शहर की बुनियाद रखी थी। यूपी के एक शहर फैज़ाबाद का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रख दिया। लखनऊ के मशहूर शहर हज़रत बल का भी नाम बदल दिया और अब मुग़ल म्यूज़ियम का नाम उन्होंने तब्दील कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, आपके नए उत्तर प्रदेश में ग़ुलामी की ज़हनियत की कोई अलामत नहीं रहेगी। यूपी हुकूमत और योगी आदित्यनाथ ने म्यूज़ियम का नाम तब्दील कर दिया है, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि आखिर अब उस म्यूज़ियम में नुमाइश किन चीज़ों की होगी। म्यूज़ियम का नाम छत्रपति शिवाजी ज़रूर रख दिया गया है, लेकिन उनसे मुताल्लिक़ चीज़ें नुमाइश के लिए आगरा में कुछ भी नहीं है। और अगर शिवाजी की तारीख़ी नुमाइश वहाँ होती है तो सिर्फ ज़िल्लत उठानी पड़ेगी, रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से था। आगरा से उनका कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा।
न वहाँ उनकी कोई यादगार है। मशहूर मौर्रिख हरबंस मुखिया के मुताबिक छत्रपति शिवाजी का आगरा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ एक बार आगरा गए थे और वो भी मुग़लों की फ़ौज से शिकस्त खाकर औरंगज़ेब से मिलने गए थे। महाराष्ट्र में मुग़लों की फ़ौज के जनरल और राजा जय सिंह ने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी, कई सारे किले पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जय सिंह शिवाजी को औरंगज़ेब के पास ले गए ताकि सुलह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। औरंगज़ेब के दरबार में उन्हें दूसरी सफ़ में खड़ा किया गया। शिवाजी इससे गुस्सा और नाराज़ हो गए और वहीं पर नाराज़गी ज़ाहिर की। उसके बाद उन्हें उसी जगह गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में औरंगज़ेब ने रहम करते हुए उन्हें आज़ाद कर दिया। इसलिए बात यकीनी है कि म्यूज़ियम में नुमाइश मुग़लों की ही होगी, मुस्लिम बादशाहों की ही होगी। मुग़लों की तारीख़ ही वहाँ बताई जाएगी, जलालुद्दीन अकबर की हिस्ट्री दिखाई जाएगी, शाहजहाँ की नुमाइश होगी, औरंगज़ेब आलमगीर की नुमाइश होगी। जो सयाह और विज़िटर्स वहाँ जाएंगे उन्हें देखने को जलालुद्दीन अकबर का किला ही मिलेगा, ताज महल की तारीख़ मिलेगी, मुग़लों का फरमान मिलेगा, मुग़ल बादशाहों का लिबास मिलेगा। म्यूज़ियम में वो यही देखेंगे कि अकबर इस तरह का कुर्ता पहनते थे, औरंगज़ेब की टोपी ये वाली थी, शाहजहाँ की पगड़ी ये थी, ये तलवार अकबर की है, ये बंदूक औरंगज़ेब के ज़माने में इस्तेमाल हुई थी, इसी तोप का इस्तेमाल करके बाबर ने पानीपत की जंग जीती थी। मारूफ मौर्रिख हरबंस मुखिया ने इस पूरे मामले पर तबसरा करते हुए कहा, योगी का यह अमल भी एक सियासी कदम है जिसका मकसद भारतीय मुसलमानों को गैर बताना है। योगी की सियासत का मरकज़ी पॉइंट मुसलमानों से नफ़रत का इजहार है, उन मुसलमानों से भी जो अभी मौजूद है और उनसे भी जो तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। वो मुसलमानों को हम में से एक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो ऐसी कौम परस्ती की बात करते हैं जिसमें मुसलमान शामिल न हो और मुग़लों का नाम लेकर वो दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। ऐसा करने के लिए अब वो हर रोज़ इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं और मीडिया का भी एक तबका उनके साथ है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुल्क में कई महाज पर सरकार को शदीद बहरान का सामना है। सरहद पर चीन के साथ जंग जैसे हालात हैं, इकनॉमिक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, GDP आज़ादी के बाद पहली मरतबा इतनी कम हुई है। इसलिए अपने वोटरों और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के गैर ज़रूरी इश्यूज़ पर फोकस किया जा रहा है और नाम बदलने की सियासत हो रही है। मुग़लों और मुस्लिम बादशाहों के दौर को RSS और BJP ग़ुलामी का ज़माना बताती है, जिस तरह हम ब्रिटिश एम्पायर को ग़ुलामी का दौर कहते हैं। ये सरासर गलत है, तारीख़ के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। मुग़लों और इससे पहले के मुस्लिम बादशाहों, ख़ासतौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सभी ने हिंदुस्तान पर मुस्तकिल हुकूमत की। इसको उन्होंने किसी दूसरी सल्तनत या खिलाफत का हिस्सा नहीं बनाया। यहाँ से हासिल होने वाली दौलत को उन्होंने यहीं के अवाम पर खर्च किया, बाहर की फ़ौजों से हिंदुस्तान की हिफाजत की, यहाँ के अवाम को रोज़गार दिया, यहाँ के लोगों को वज़ीर, एडवाइज़र, फ़ौजी, हुक्काम, गवर्नर सब कुछ बनाया। वो यहीं रहे, इसी सरज़मीन पर दफन हुए, उनका ख़ानदान यहीं का बनकर रहा। हुकूमत के तमाम ओहदों में उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को शरीक किया। कई मुस्लिम बादशाहों ने भारत के हिंदू अवाम का दिल रखने के लिए उनकी तहज़ीब को अपनाने पर ज़ोर दिया, उनके घरों में शादियां की। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का मामला है। अंग्रेज़ों ने बरतानिया से भारत पर हुकूमत की, भारत के अवाम से मुग़लों के मुकाबला में 4 गुना ज़्यादा टैक्स वसूल किया। यहाँ से लिए गए पैसे का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश एम्पायर की तरक्की में लगाया, उसके मसारिफ में खर्च किया। हुक्काम, गवर्नर उन्होंने अंग्रेज़ों को बनाया, सभी महकमों में आला ओहदों पर उन्होंने बरतानिया के लोगों को रखा। भारतीय अवाम को हुकूमत, सियासत, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी सब कुछ से दूर रखा। औरंगज़ेब के ज़माने में भारत की इकोनॉमी की पोजीशन वही थी जो आज के अमेरिका की है। जिस तरह आज अमेरिका सबसे मालदार मुल्क कहलाता है, फ़ौज और दीगर मामलों में ताकतवर और सुपर पावर है, मुग़लों के ज़माने में यही पोजीशन भारत की थी। भारत के पास जितनी दौलत थी उस वक्त दुनिया की किसी भी सल्तनत के पास नहीं थी। ताकत और क़ुव्वत में पहले नंबर पर खिलाफत उस्मानिया थी, पूरे आलम इस्लाम पर उसकी हुकूमत थी, लेकिन दौलत में मुग़ल एम्पायर उससे भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। अंग्रेज़ों ने इसी दौलत के लिए धोखा का रास्ता इख्तियार किया और भारत पर कब्ज़ा करके यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना लिया।
भारत के मुसलमान और मुग़ल हुक्मरानों ने अपनी ज़िंदगी में भी भारत और यहाँ के अवाम के लिए काम किया, मईशत को बेहतर बनाया, रोज़गार दिया और आज वो अपनी मौत और सल्तनत के ख़ात्मा के बाद भी भारत की मईशत, अवाम के रोज़गार और दुनिया की तवज्जो का सबब बने हुए हैं। भारत की आज़ादी का जश्न लाल किला से मनाया जाता है, उसकी फसील पर हमारा तिरंगा लहराया जाता है। दुनिया भर के लोग ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर किला, कुतुब मीनार और इस जैसी बेशुमार इमारतों की खूबसूरती देखने आते हैं। इसकी वजह से हमारे मुल्क के ख़जाने में करोड़ों रुपये की सालाना आमदनी होती है, लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और बैरूनी ममालिक से हमारे रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। जिन बादशाहों ने भारत के लिए इतना कुछ किया, आज उन्हीं का ये नामो निशान मिटाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में ग़ुलामी की सभी अलामतों को हम मिटा देंगे, लेकिन वो मिटा नहीं सकते हैं। 24 फरवरी को उन्हें ग़ुलामी की अलामत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी पेश करनी पड़ी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हुई थी, आप भी देख सकते हैं। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।